So, hello students. Now we have done a little bit about matter and its properties. Now we are going to deal with. So, we studied that there are different states of matter, solid, liquid and gases, and the other two states, that is the plasma state and the Bose-Einstein condensate. Sounds a little of a different level, so we stick ourselves to solid, liquid and gas for standard 9. Now, what happens when we start heating, say for example, water, then after some time it boils and changes its states. So first we'll try to understand what are the names used for conversion of states of matter. First that we'll look, then we will look at the effect of heat or effect of cooling of matter, in how these are interconverted, what are the numerical aspects of it, all those things we are going to deal in this chapter. So stay focused over here, stay focused and stay tuned. Now let us see, we have made solid, liquid, gas. So when a solid changes to liquid, then the process may be called as melting or fusion. Alright, say for example, ice changes to water, then fusion of ice. Iron changes to liquid iron, then fusion or melting of iron. Then liquid to gas means vaporization, boiling, evaporation. All these will somehow relate to change from liquid to gaseous state. Now the vice versa. Gas to liquid is condensation, like steam condenses to water. Then water will condense or solidify to ice. So liquid to solid is solidification. You may have seen camphor. Camphor, directly from solid it goes to gaseous state. So that is known as sublimation. Those substances are also called they have the capacity of sublimation. Camphor, then naphthalene, etc. They will straight away see mommy must have kept naphthalene balls in your almirah, and the naphthalene ball will give a smell out. So it is not changing to liquid, but straight away it is changing to gaseous state. To solid to direct gaseous state means sublimation, and if you come back, then it is known as from gaseous to direct solid is deposition. So there are many substances. I give it to you, you search and send me on the comment over there that what are the things which directly convert from gas to solid. So that is your work. Just put on the comment over there, and I would like to see everybody, Akshat and everybody in the Ayush, Lakshit, putting on comment on are you following these chapters or not. And I am providing you the study assistance material on your WhatsApp group. After you see this video, you do your PDF files which are given, the notes are there, then the numericals based on every video is given to you. Now let us see. So you might have seen the conversion state. आप देखे होंगे conversion state, देखे होंगे घर में मम्मी बॉईल कर रही है पानी को, तो पानी पहले गर्म होता है, फिर उसमें से देखिएगा कि वेपर और स्टीम निकलने लगता है. So you might have seen the conversion of state. I think so. That is the only conversion of state you might have seen, isn't it? Now and then today you do that. घर में रेफ्रिजरेटर है, पानी रख दीजिए डीप फ्रीज में और देखिए फिर क्या होगा. लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, वाटर आइस में बदल जाएगा. और गौर कीजिएगा, जब जितना पानी लीजिएगा, जितना वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा. सो वो सब चीज़ भी कीजिए. थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं स्टडीज़ के. ये बात पहला हो गया. दूसरा चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. It is the amount of heat required to change the temperature of unit mass of a substance by 1 Kelvin. अब ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आ गया. हम जब किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, और किसी भी चीज़ को कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर फॉल होता है. तो मान लीजिए हम 1 किलो पानी लिए, याद रखिए 1 किलो पानी. 1 किलो पानी का टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो हमको गैस जलाना पड़ेगा और हीट सप्लाई होगा. तो फिक्स्ड अमाउंट होता है, प्रॉपर्टी होता है पानी का. 1 किलो प्योर पानी यहाँ लीजिए, पुणे में लीजिए, इंग्लैंड में लीजिए, अमेरिका में लीजिए, अगर पानी 1 किलो है तो 1 किलो पानी का टेम्परेचर का 1 डिग्री या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सेम चीज़ 1 केल्विन बढ़ेगा
तो पानी 4200 जूल्स हीट लेगा, उसको देना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई दैट मच ऑफ हीट। और अगर पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री हटाएंगे तो पानी खुद से 4200 जूल्स का हीट एटमॉस्फेयर में दे देगा। So whenever we heat something, the temperature is raised. Yani to raise the temperature, we have to supply the heat. When the temperature is brought down by any substance, then it supplies heat. इस चीज को याद रखें। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई पूछेगा क्या है तो कहिएगा इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर of 1 kg, याद रखिए, और 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बार बार बोलिए, समझिए। अगर पानी एग्जांपल देते हैं, पानी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। यहीं से आपको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं। 1 किलो पानी का, केजी लिखा हुआ, 1 किलो पानी के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें 4200 जूल्स हीट देना है। उसके बाद उसको इंग्लिश में बोल दीजिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड वी हैव टू गिव 4200 जूल्स ऑफ हीट, एंड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन वी हैव टू अगेन टेक आउट 4200 जूल्स ऑफ हीट। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। अगर आयरन का लिखा हुआ तो व्हाट वी विल से, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ आयरन बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड वी हैव टू सप्लाई 554 जूल्स ऑफ हीट और वी हैव टू टेक आउट दैट मच ऑफ हीट। अगर आप उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 1 डिग्री से तो यू हैव टू गिव 554, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते तो आयरन ही खुद 554 जूल्स ऑफ हीट देगा। यहाँ पर एक बार और बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोग कंपेयर करें तो पानी का स्पेसिफिक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। जितना हीट में 1 किलो आयरन गर्म हो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा, उससे करीब 7 पॉइंट समथिंग टाइम्स पानी को चाहिए हीट, तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री। तो पानी देर से गर्म होता है। सेम क्वांटिटी ऑफ पानी, अगर आयरन और पानी को कंपेयर करें तो सेम क्वांटिटी ऑफ आयरन जितना टाइम लेता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने या घटने में, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, करीब 7 गुना ज़्यादा टाइम लेगा पानी। अब एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। How much of heat is required to raise the temperature 5 kg of water from 293 to 313 Kelvin? तो 20 डिग्री बढ़ाना है। 313 माइनस 293, 20 डिग्री हमको बढ़ाना है। तो यूनिटरी मेथड से पहले यहीं पर किया जाए। वी कैन सॉल्व बाय यूनिटरी मेथड हियर। वाटर को दिया हुआ, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट इतना है, तो क्या समझते हैं, 1 किलो पानी के लिए को 1 kg पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 4200, तो 5 किलो के लिए 5 से गुना कर देंगे, तो 5 किलो का 1 डिग्री पता चल जाएगा, तो 21,000 आ जाएगा। और फिर उसको हम लोग, अब वो लेकिन 1 ही डिग्री हुआ, लेकिन कितना डिग्री बढ़ाना है, 20, तो 20 से और गुना कर देंगे। तो यानी टोटली क्या है, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन, यानी फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हीट रिक्वायर्ड, रेज करना है टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज करना मतलब हम लोग देंगे, तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। तो 1 किलो पानी था तो 4200 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 5 किलो पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए होगा तो 20 डिग्री बढ़ाने के लिए 20 से और गुना करना पड़ेगा, इतना जूल्स। तो 5 2 10, 4 5 20 एंड 121 42, 210 हो गया, 1 2 3 जूल्स। $2,10,000 जूल्स चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज देयर। तो पानी का हाई स्पेसिफिक हीट होने का बहुत सा प्रैक्टिकल वैल्यू भी है। पानी का हाई स्पेसिफिक हीट होने का बहुत सा प्रैक्टिकल वैल्यू है, क्योंकि आप देखते हैं कि पानी देर से गर्म होता है, पानी देर से ठंडा होता है, इसीलिए हमारे अर्थ के सरफेस पर काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो अगर जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, वेदर चेंजेस बहुत फास्ट होने लगेंगे। दूसरा चीज़ है कि अगर आप देखते हैं हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन होता है, लोग को अगर कुछ होता है तो वाटर बैग रखते हैं, तो अगर हम उसके बदले अगर 1 किलो आयरन रखें और उसको कपड़े से लपेट के सेकें, लेकिन 2 मिनट के अंदर में आयरन ठंडा हो जाएगा।
तो पानी बहुत धीरे, और इसका बहुत सा एडवांटेज है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि आप थ्रू नोट्स जाइएगा और खुद से सर्च करके फिर से हमें नीचे के कमेंट में जरूर लिखिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। लक्षित, आई वुड लाइक यू टू डू दिस, पुट द कमेंट ऑन यूट्यूब। लक्षित आपको करना है ये, बाकी सब में भी करना आपको कमेंट्स। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये मैंने आपसे पूछा था। कौन डायरेक्टली डिपोजिशन होता है गैस से, कौन डायरेक्टली लिक्विड होता है, उसके बारे में आप लिखिए नीचे कमेंट में। लक्षित, सुभाषा, सृष्टि, सब कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर लिखिए जो क्वेश्चंस मैंने दिया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।